Okay, darling. So that was a small glimpse about our university and the group. You know, I have a saying after, going through this video. The only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work for them. So with this same enthusiasm, I would like to welcome our speaker, Ms. Deepmala Singh. I'll give a very short introduction because we don't want to waste much of time. She's a training and coaching in Delhi NCR since more than 5 years in educational, professional and glamour industry. She has trained many students and, not only students working and non-working professionals and even the women's as well as the contestants of different beauty pageants in Gurgaon. So without wasting much of the time, please, ma'am, the stage is all yours. And thank you so much. Paper B, it will be an interactive and interesting session. Please keep yourself mute. If you have any question, put it in the chat box. Thank you so much, Tasneem. Thank you so much for Well, having me here. Thank you, Sage, as well. मुझे invite करने के लिए. First of all, I would like to ask you, are you all comfortable with English as a language, or should I switch to Hindi? I am good with both. What language suits you more? Please tell me. Please write it down in the chat box. Mix, that would be better. Right. So I'll go with that. Great, Sarika ji. So let's start directly with the session, and I'll be adding my PPT with this. I'm new to online sessions. Please. Yes, you can share. I have a major co-host. Right. So I hope my PPT is visible to all. Yes, it's visible. Great. And just a minute. Great. So the session today is let's set goals. हम आज अपने विजन को, अपने गोल्स को सेट करने के लिए आज इस सेशन में आए हैं. Tell me who all agree with me in the chat box. This is also a way to check that your chat box is working fine. Chat box मेरा काम कर रहा है कि नहीं proper तरीके से, and I can read it or not. Please. Great, Sarika ji said yes. Okay. So there are a few guidelines. कुछ guidelines हैं इस session की. Number one is that this is an interactive session. ये interactive session है. आपसे जब भी सवाल पूछे जाएंगे, please आप chat box में उनके answers करें. If you think कि आपको वो questions मैं कहूँ कि आप अपनी notebook या paper में write down करें, तो आप वहाँ पे लिखेंगे. If I'll ask you to give me an answer chat box में, तो आप फिर chat box में please answer कीजिएगा. The second thing is that आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे इस सेशन से पहले. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और जब ये सेशन एंड पर हो उस वक्त मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने सवाल शेयर करें. हमारे पास वक्त 1 घंटे का है. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर अस. हम उस 1 घंटे के एंड में मोस्टली आई थिंक बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन में ही मिल चुके होंगे.
बट वी विल ट्राई कि आप एंड में फिर भी कोई सवाल हो तो हम उन्हें केटर करें. आर वी गुड टू गो नाउ? All set. ग्रेट. तो आप यहाँ पर इस सेशन में व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? कोई चीज होगी जो आपको लगा होगा इस सेशन से आपको मिलने वाली है. ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की थी मैंने, और अभी भी मैं आई एम नॉट सेइंग आई विल गेट अवे विद दैट. आई स्टिल प्रॉमिस दैट यू विल गेट ऑल दोस थिंग्स. तो व्हाट यू थिंक कि कौन सी चीज है जो आपको इस सेशन में लेकर आई है? आप क्या चाहते हैं इस सेशन से? प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. Is there something that you feel that you are going to gain after investing 1 hour of your time in this session? Is there anything? Okay, let me tell you that I said that you'll understand how to identify your goals properly, how to set your goals, how to have effective time management, right? Great. So of course you'll get that, all that. But ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आप सभी लोग सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं. टेल मी, आई एम राइट और नॉट? तो मैं आज आपको इस सेशन के थ्रू एक सक्सेस की चाबी देने वाली हूं. आर यू ऑल रेडी टू एक्सेप्ट दिस की? आई नीड योर आंसर्स. Are you all ready to accept this key to success? This key is going to open the door to success for you. Are you ready for this? Great, great. So tell me who all actually dream. हम शुरू करते हैं अपने सपनों से. सपने देखते हैं आप लोग? और ये सपने आपके रात में जो सपने आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं. आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दोज ड्रीम्स जो आप खुली आंखों से देखते हैं. इन सपनों को हम डिफरेंट नेम्स से जानते हैं. कुछ लोग कहते हैं ये हमारी विशेस हैं. मेरी इच्छा है कि मैं किसी दिन यूरोप घूम कर आऊं. मैं चाहती हूं कि मेरे पास एक नई ड्रेस हो. अरे एक अच्छी सी वॉच होती तो कितना अच्छा होता. मेरे पास नई कार चाहिए मुझे. बाइक में चल चल के थक गया हूं. So all these wishes are a part of our dreams that we desire to fulfill. We call it by different names. These may be your desires or your aspirations. That means आपकी महत्वाकांक्षाएं, या फिर आपका पैशन, आपका जुनून, वो चीज जिसके बारे में आप दिन रात सोते हैं. कभी कभी तो सोते हुए भी रियल सोते हुए भी आपको सपने उसी चीज के आते हैं. एंड दैट इज व्हाट काउंट्स एज योर पैशन. So what dream is all about, I'm going to share with you a little bit, and how it converts into your dream goals. Sorry, your dream converts into your goals. आपकी आज एक स्टेज है, your present state of life. इस वक्त आप जिस भी परिस्थिति में हैं जिंदगी की, ये परिस्थिति आपकी, या तो आप इससे खुश हैं और या फिर आप इससे खुश नहीं हैं. इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा. आई थिंक थर्ड कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. या तो आप खुश हैं या नहीं हैं. अगर आप खुश नहीं हैं तो आप चाहेंगे कि इस परिस्थिति को मैं पूरी तरह से बदल दूं और एक नई परिस्थिति में पहुंच जाऊं. और अगर आप खुश हैं तब भी आप चाहेंगे कि मैं जिस भी परिस्थिति में हूं खुश हूं, पर क्या मुझे इससे बेहतर कोई एक सिचुएशन मिल सकती है. व्हाई नॉट इम्प्रूव विद द करंट सिचुएशन. तो ऑल आवर डिजायर्स, विशेस, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, ये सभी कुछ इस जर्नी के बारे में है जो हम आज हैं प्रेजेंट स्टेज में, और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हमारी डिजायर्ड स्टेट. तो इट इज ऑल अबाउट योर ड्रीम to travel this distance. One thing, you will never dream about what you already have. अगर आपके पास कोई बाइक ऑलरेडी है तो आप उसी बाइक के बारे में ड्रीम नहीं करेंगे. वो तो आपके पास ऑलरेडी है. You will think about something that you don't have. You will think about either an upgraded model of that bike, या फिर आप सोचेंगे कि यार बाइक बहुत हो गई भाई, चलो कार की तरफ सोचना शुरू करते हैं.
So I hope this is clear with all of you, that you dream about something that you desire for. So how does this dream becomes your goal then? How can you design this dream to become your goal? So I think you all have something or the other. Just keep that in mind right now. अपने दिमाग में वो सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं कि आपका सपना है, भले वो छोटा सपना हो या बड़ा, it doesn't matter at all. आप उस सपने को इस वक्त बस सोच के रखिए, हम उस पे वर्किंग करने वाले हैं. क्रिकेट किस किस को पसंद है एज अ गेम? यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इंडियंस, सभी इंडियंस क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होते हैं. अगर मैं शायद फुटबॉल बोलूं तो शायद इतने नंबर ऑफ पीपल नहीं होंगे जितने ज्यादा क्रिकेट के इंडियन फैंस हैं. So how many of you are cricket fans? Is there any cricket fan in this session? Okay, let me assume that most of you are. So because I can see जब हमारे matches होते हैं तो पूरी की पूरी रोज सुनसान हो जाती हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच के टाइम पे. एंड देयर आर पीपल की कुछ और गेम का डिटेलिंग नहीं भी पता हो, बट दे नो दैट देयर इज समथिंग अबाउट क्रिकेट. व्हेन यू विन अ मैच, आप एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, राइट? सो यू ऑल लव क्रिकेट, बट एज अ प्लेयर or as an audience? As a player or as an audience? As a player or as an audience? You play cricket or you watch cricket? You love watching cricket or you love playing cricket? Great. So Sarika ji said both, so she must be playing it as well. So there are people who are also playing it. That's great. So the difference between our dream and our goal is in these two places where you place yourself. Either you love cricket as an audience or you love cricket as a player of the match. So to achieve that World Cup trophy, an audience will only dream about it. एक audience World Cup की trophy के लिए सिर्फ सपने देखेगा कि काश वो ट्रॉफी हम इंडियंस को मिल जाए, मेरी टीम विन करनी चाहिए. मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ले रही हूँ वर्ल्ड कप मैचेस के लिए. सो एवरी ऑडियंस विल थिंक अबाउट दैट ट्रॉफी एक सपने की तरह, एक विश की तरह कि ये मिल जाए. ये सपना एक प्लेयर भी देखता है, बट व्हाट विल दैट प्लेयर डू? वो अपनी पूरी जान लगा देगा कि वो ट्रॉफी उसके हाथ में हो, वो उस ट्रॉफी को फील करना चाहेगा. सो ही विल मेक इट एज अ गोल. गॉट इट? ऐसा नहीं है कि उसने कभी वो सपना नहीं देखा होगा, वो पहले सपना देखेगा और फिर अपनी पूरी सारे एफर्ट्स, टाइम, सब कुछ लगा देगा, सारी मेहनत लगा देगा और उसको अपना गोल बनाएगा कि वो ट्रॉफी मेरे हाथ में होनी चाहिए. So when you dream about something, जब आप किसी चीज का सपना देखते हैं तो आपको तीन चीजें करनी होती हैं. three things. First one is you plan कि आपको वो चीज कैसे मिलेगी. The second one is going to be your action. आप क्या क्या करेंगे, वो प्लान तो कर चुके, पर क्या आप वो एक्शन ले रहे हैं उस चीज को करने के लिए? You take that action and then you'll have to give your third thing, your time and effort to make it happen. When all these three things are there, your plan, your action and your time towards that particular dream, it creates your goal. So this is how a player feels when that player holds that trophy in his hand. जब वो ट्रॉफी उसके हाथ में होती है तो वो फीलिंग क्या होती है? वो अब सपना सिर्फ सपना नहीं है. मैंने बहुत दिन की मेहनत के बाद पूरी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजीज लगा के, सारे एक्शंस लेके, अपना पूरा टाइम और एफर्ट लगा के ये ट्रॉफी हासिल की है. So let me share 3 steps
what I shared recently, अभी जो मैंने समझाया उसके बारे में 3 चीजें बताना चाहूंगी. जो ड्रीम करते हैं सिर्फ, those people are called as dreamers. वो बहुत अच्छे सपने देखने जानते हैं. सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहला स्टेप है. अगर आपने सपना ही नहीं देखा तो आप कभी किसी गोल को, किसी विजन को क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे. The second one is the executor. Executors are those जो सपने को कैसे, किस प्लान के साथ गोल तक पहुंचना है, उस पूरी चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. And when they execute it perfectly, everything goes well, then they become the achievers. So there are three kinds of people. Step 1 में आप ड्रीम देखोगे. स्टेप 2 में आप उस ड्रीम को एग्जीक्यूट करोगे 3 चीजों के साथ, प्लानिंग, एक्शन एंड योर टाइम. द थर्ड थिंग इज बीइंग एन अचीवर अबाउट इट. यू विल अचीव दैट गोल. Are you all with me right now? So when you play your game, you take an action with a particular strategy called as plan for the victory on that particular day. What is that day all about? जब आपका मैच हो रहा होता है, क्या एक दिन भी पहले आप उस मैच को प्ले करके जीत सकते हैं? नहीं, आपको उसी दिन के लिए प्रिपेयर करना है. क्या आप उस दिन सोचें कि नहीं, मैं आज, मेरे पास एक एक्सक्यूज है, मैं कल इस मैच को प्ले करूंगा? That is also not possible, because that had to be done on that particular day, right? So when you take all these steps as an executor, then only you will be able to achieve. आप achieve तभी कर पाएंगे. And इस third step पे आप अपने dreams को अपने goals में convert करते हैं. So are you all prepared to design your goals now? Give me a yes in the comment box, please. Give me a yes. Give me a yes, please. Thank you. Thank you. So I hope you all are prepared with your notebook or your paper and pen. You are going to write a lot now. ये तो सिर्फ शुरुआत थी. Write down 5 of your dreams, desires, wishes, aspirations, passion. आप अपने कोई भी 5 चीजें, इससे ज्यादा हो तो लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिखी जा सकती हैं अगर आपके पास हैं तो. आप 5 चीजें लिखेंगे. आपके कौन से सपने हैं जो आप देखते हैं, खुली आंखों से भी देखते हैं, क्या इच्छाएं हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं आप, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, और आपका पैशन क्या है. I am giving you 30 seconds now. Please write it down. Then we'll move ahead. I hope you all are writing. Okay, let's move ahead. हमारे लाइफ में 6 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एरियाज होते हैं लाइफ के. इन 6 ब्रॉड एरियाज ऑफ लाइफ में से हम लोगों ने जो भी आपने एस्पिरेशंस, डिजायर्स निकाले होंगे, ये इन्हीं 6 ब्रॉडर एरियाज में फॉल करेंगे. फर्स्ट इज योर फैमिली एंड रिलेशनशिप. सेकेंड इज योर करियर, बिजनेस और प्रोफेशन. थर्ड इज योर मनी एंड फाइनेंस. फोर्थ इज योर हेल्थ and fitness. Fifth is your social or friend circle. Sixth is your self and spirituality. आप जो भी डिजायर कर रहे होंगे वो इन्हीं में से किसी ना किसी ब्रॉडर एरियाज में फॉल करेंगे. ओके, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस वक्त जो आपने अपना पैशन लिखा है वो किस एरिया में फॉल कर रहा है. हेल्थ में, मनी में, फाइनेंसेस में, career, family, relationship, whatsoever it is. आप just उस ड्रीम के आगे उस कैटेगरी को डिफाइन कर लीजिए. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ये सारे के सारे 6 एस्पेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, एरियाज दिख रहे हैं, आप अपने ड्रीम को
एक वेल डिफाइंड रखने के लिए भले ही उस की एरिया को डिफाइन कर लें कि ये हेल्थ में फॉल कर रहा है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स जो हैं, 6 एरियाज हैं, दे ऑल आर नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। आपकी एक भी चीज डिस्टर्ब्ड है अगर, तो आपकी दूसरी चीज बहुत ज्यादा ईज पे नहीं आ सकती। आपका अगर मनी और फाइनेंसेस डिस्टर्ब्ड हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके दैट मीन्स आपके करियर, बिजनेस और प्रोफेशन ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, इसीलिए आपके मनी और फाइनेंस नहीं ठीक है। अगर आपके फैमिली एंड रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आपकी हेल्थ और फिटनेस पे भी इफेक्ट आएगा। अगर हेल्थ और फिटनेस पे आपके कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आपके मनी, फाइनेंस, सोशल, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके करियर, बिजनेस, एवरीथिंग विल गेट अफेक्टेड। आपकी हर चीज में बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगेगा। सो एक्चुअली आपको इन सभी चीजों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बट राइट नाउ फॉर दिस सेशन ओनली यू जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम। बाकी की चीजें जितनी भी हैं उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा जस्टिफिकेशन रखते हुए, नॉट लाइक कि आप हेल्थ सोच रहे हैं तो आपको बाकी की चीजें छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। अगर आप हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बाकी के सारे एरियाज ऑफ लाइफ के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचना है। मेन आप हेल्थ रखें पर बाकी के एरियाज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। So tell me who all know about this person. I'm talking to you about inspiration of your life. This man is an inspiration for most of the trainers and an inspiration for me as well. I know that there are many trainers in this session. Right, Savitri ji, Praful, great. Jigna, right. So this is Tony Robbins. Actually, he's Anthony Robbins, also known as Tony Robbins. He is one of the best speakers of this world. सभी की इच्छा होती है कि जो ट्रेनर्स होते हैं उन वो सारे ट्रेनर्स चाहते हैं, और बहुत सारे नॉर्मल पीपल जो जनरल पब्लिक है, दे ऑल्सो फील कि किसी ना किसी दिन इनका एक सेशन अटेंड करें। तो अगर आपने जो भी ड्रीम देखा है इस वक्त, अब आप सोचें कि आपका कौन सा इंस्पिरेशन है, उस ड्रीम से कनेक्ट करता है आपको। इफ यू आर इनटू कंप्यूटर साइंस एंड आप उस फील्ड में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका हाईएस्ट लेवल पे आपने किसको सोचा है कि मुझे उसके जैसा बनना है या मैं उससे भी आगे निकलना चाहता हूँ। दैट इज नॉट जस्ट द लिमिट कि आपको उनके जैसा बनना है, आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं, पर आप पहले डिजाइन तो करें कि वो पर्सन कौन है जो आपको इंस्पायर करता है इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए। वो पर्सन ऑलरेडी उस जर्नी को ट्रैवल कर चुका है, तो ये इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट इट डाउन। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं तो क्या आपको इंडियन कोई ऐसा हेल्थ और फिटनेस का पर्सनालिटी है जो आपको लगता है, इफ यू वांट टू गो इनटू योगा तो आप योगाचार्य के बारे में सोचेंगे, इफ यू वांट टू गो इनटू जिमिंग एंड ऑल तो आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचेंगे जो जिम से रिलेटेड बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इंटरनेशनली ही इज नोन, he was Mr. World for years. He's a celebrity. So आप उनके बारे में सोचेंगे। आपको इंडियन कोई समझ में आता है, इंडियन गुरु जिनको आप मानना चाहेंगे इस वो पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन। इट कैन बी अ मैन और अ वुमेन और इवन अ स्मॉल किड, इट इज परफेक्टली फाइन। हो सकता है वो आज प्रेजेंट हो सकता है वो हिस्ट्री हो गए हो, बट doesn't matter. Inspiration is an inspiration. Now saying that Gandhi ji is my inspiration is a good thing, but क्या गांधी जी आपके इस ड्रीम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? This is just an example for you. Right now I'm asking you to think about a person जो आपका इंस्पिरेशन है पर आपकी फील्ड के साथ कनेक्ट करता है, जो आपका ड्रीम है उसके साथ कनेक्ट करता है। So please write it down. I hope you have an answer now. तो इस सेशन में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे अपने ड्रीम्स के साथ, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तभी हमें जवाब मिलते हैं। तो हम डील करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस से, और पहला क्वेश्चन है व्हाट। जब हम सवाल करेंगे व्हाट, तो वो ये सवाल हमें बताएगा कि हमारा प्राइमरी गोल क्या होगा। ये सब कुछ हम डिजाइन करने वाले हैं,
आई एम जस्ट गिविंग यू एक छोटा सा, पहले से ही मैं बता रही हूँ कि हम क्या क्या चीजें अभी जिन चीजों से हम डील करेंगे। तो व्हाट विल डिफाइन योर प्राइमरी गोल्स, आपका प्राइमरी गोल क्या होगा, सबसे मेन गोल। दूसरी चीज है वाई, किस तरीके से, मतलब क्यों हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, वो हमारा पर्पस कौन सा है जिसके हेल्प, जिसकी वजह से हम ये करना चाहते हैं। और ये जवाब अगर हमने ढूंढ लिया तो इस जवाब हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा हमें उस गोल तक पहुंचने के लिए। थर्ड इज हाउ, हम किस तरीके से उस गोल तक पहुंचेंगे। हम मेजर स्टेप्स लेंगे, अपने स्टेप्स हम सब गोल्स में डिवाइड करके गोल्स को स्टेप्स लेंगे और फिर हम उस गोल तक धीरे धीरे पहुंचेंगे। साथ ही हमें कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। हाउ के आंसर में रिसोर्सेज भी आते हैं। ये रिसोर्सेज आपके मनी हो सकता है, मनी फाइनेंस, आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, आपकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ हो सकती है। इनमें से और भी बहुत सी चीजें होंगी जो आपको लगेगा ये आपके रिसोर्सेज हैं। तो जस्ट फिगर आउट कि क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। दिस इज गोइंग टू गिव एन आंसर टू योर हाउ यू आर गोइंग टू achieve your goal. Next is going to be your when. When question का आंसर होगा you will have to decide on time. वो टाइम दो चीजें हैं, कब आप स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक आपको वो गोल अचीव कर लेना है। जैसे कि मैंने वर्ल्ड कप की बात की कि वर्ल्ड कप उस पर्टिकुलर डे के मैच को जब हम प्ले करेंगे तभी हम जीत सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि जीते या नहीं। बट अगर हमने सोचा नहीं हम एक दिन पहले कर लें, आज मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, सपोज आई डिसाइडेड कि ये सेशन आज होना है और मैं 3 दिन पहले ही प्रिपेयर्ड थी इस सेशन के लिए सपोज, तो क्या मैं तब ले लेती सेशन? नहीं, इट वॉज डिसाइडेड ऑन दिस डेट, ऑन 19, तो मैं इसी डेट पे लूंगी। सो देयर इज अ टारगेट डेट। क्या मैं इस सेशन को 2 दिन बाद टाल सकती थी? इवन इफ आई एवर फील कि हो सकता है आज मुझे कोई सडनली लगे कि अरे ये इमरजेंसी आ गई, तो वॉज इट पॉसिबल कि मैं इसको टाल दूं? इमरजेंसीज में इधर आई फिगर आउट वे आउट, और या फिर कोई ऐसी चीज कि मैं कैसे किस तरीके से उस इमरजेंसी से डील कर सकती हूँ टाइम रहते, जिससे मैं इस सेशन को आज ही कंप्लीट करूं। सो इवन क्रिकेटर्स व्हेन दे प्ले देयर फाइनल मैचेस, बिलीव मी उस दिन और उस वक्त कई बार होता होगा कि उस दिन कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है कि लगता है आज ये इश्यूज आ गए, विल आई बी एबल टू प्ले दिस गेम नाउ? So now the next question is what if? What if means what if you face a hurdle? अगर कुछ problems आए, इसमें hurdles आ गए, तो हम क्या करेंगे फिर? Okay, we'll figure out that as well. हम उस पर भी बात करेंगे कि अगर हम इस गोल को अचीव करते वक्त हमारे कुछ hurdles आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, और वो हम क्या कर सकते हैं वो होंगे हमारे solutions. So let's start now and answer all these questions. First one is what? I shared with you that the first question that you will have to answer is what is your primary goal? So whatever dream you have decided till now, कि ये वो ड्रीम है जिसको मैंने अगर अपना पूरा टाइम, एफर्ट, प्लान सब कुछ करके एक्शन लिया तो मैं उसे अचीव करना चाहता हूँ या अचीव करना चाहती हूँ। इट मस्ट बी योर डिसीजन कि आप ये ड्रीम अचीव करना ही चाहते हैं और अपना इतना टाइम और एफर्ट इस ड्रीम के लिए लगा देंगे जिससे आप ये अचीव कर पाए। सो दैट बिकम्स योर गोल। Goals, dreams, and aspirations, we all have them. You cannot say that you don't have them. You all have them. Write down what are yours. So how we are going to do that is plan it. Why? It is a must. ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपका पर्पस अपने गोल के लिए वेल डिफाइंड हो। आपका ये पर्पस अगर वेल डिफाइंड नहीं है, आप मोटिवेशंस लूज कर जाएंगे। अगर बहुत रैंडम पर्पसेस हैं, you will not be happy even to travel to that reach that goal. आपका पर्पस क्या है इस गोल को अचीव करने के लिए? सपोज मैं
सपोज मैं चाहती हूँ मेरे पास एक बाइक है और मैं चाहती हूँ कि मुझे अब कार में शिफ्ट होना है। सो मेरा पर्पस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मेरी फैमिली में अब लोग बढ़ गए हैं और बहुत ज़रूरी है कि अब हम बाइक से कार में शिफ्ट हो जाएं। कार में शिफ्ट हो गए अगर हम, तो अभी हम जब पूरी फैमिली एक साथ ट्रेवल नहीं कर पाते, तो उस टाइम हम लोग सारे के सारे लोग एक कार में ट्रैवल करके पिकनिक स्पॉट पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू लव इट अलॉट। हम उस पूरे मूवमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो दूसरा रीजन हो सकता है, जब मैं इस कार को अचीव करूंगी, आई विल फील कि ये मैंने पूरा का पूरा अपनी मेहनत से इस अचीवमेंट को लिया है। सो द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर मी। वो मुझे इतनी खुशी देगा कि मुझे लगेगा आई एम सो गुड एंड दिस इज नॉट टू प्रूव समवन एल्स, ये मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ अचीवमेंट देने लग जाएगा। ये पर्पस जो आपका डिफाइंड है, याद रखिए, ये जितना स्ट्रॉन्गर होगा, जितना स्ट्रॉन्गर आपका वाई होगा, उतना क्लियर आपका गोल होगा। मेक दैट दिस पर्पस ऑफ योर गोल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड साथ ही इसे इमोशनल बनाएं। अगर आपकी फीलिंग्स इस पर्पस के साथ जुड़ी होंगी तो यू विल फील मोटिवेटेड। अपने इस फीलिंग्स के साथ अपने गोल को आप इजीली अचीव कर पाएंगे। नाउ दो चीजें होती हैं, एक तो आपके जो पर्पस है वो आपका इंट्रिंसिक हो सकता है, आपके मन से बहुत तीव्र इच्छा है कि आप ये गोल अचीव करें, और अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो क्या होगा। तो या तो आप चाह रहे हैं कोई चीज अचीव करना बिकॉज आपको कोई एक पेन है, आप चाहते हैं इस पेन से आप निकल जाएं और वो चीज अचीव कर लें, या फिर आपको वो चीज इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, आज आप किसी पेन में नहीं है बट स्टिल आपको वो चीज इतनी अट्रैक्टिव लग रही है कि यू फील कि ये चीज, ये जो गोल है, ये अगर मैंने नहीं अचीव किया, अगर मैंने वो कार अचीव नहीं की, तो मुझे लगेगा मैं खुश नहीं हूं। तो और अगर अचीव कर ली तो मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाली हूँ। वो खुशी की भी डेफिनेशन है, आप अपने बच्चों को खुशी देना चाहेंगे, आप अपनी फैमिली को खुशी देना चाहेंगे, तो वो खुशी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज एक चीज और, आपकी अपनी इच्छाओं को आप पूरा करने के लिए कर रहे हैं, आपके अंदर से ये चीज आ रही है, या दूसरी चीज है आपके फैमिली में कोई है जिसकी कभी इच्छा थी, ड्रीम था कि मेरा बेटा एक दिन कार में मुझे लेके जाएगा, एंड यू फील हाँ मम्मी का जो ये ड्रीम है ना, ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और ये ड्रीम पूरा करने के लिए आपने उस कार को अपना गोल बना लिया। सो नाउ फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए आप ये सारा गोल, ये विजन जो है, इसके लिए पूरी मेहनत करने के लिए आप पूरी मेहनत से कूद जाएं इस फील्ड में। सो प्लानिंग, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस गोल नाउ। देयर इज अ पर्टिकुलर वे, एक तरीका है जिस वे में हम चलते हुए इस गोल को प्लान कर सकते हैं, and that's why in training field it is called as planning your smart goals. So S stands for specific. जो भी गोल आप, ड्रीम जो आपने डिजाइन किया है, जो आप चाहते हैं कि वो आपका गोल बन जाए, वो तभी आपका गोल हो सकता है जब ये बहुत रियलिस्टिक हो। अगर मैं आज सोचूं कि मैं कल ऐसा करती हूँ, फ्लाइट, प्रोफेशनल फ्लाइट चलाती हूँ, हाउ वुड दैट बी? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट रियलिस्टिक। मुझे प्रोफेशनल डिग्री लेनी होगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने होंगे उस फ्लाइट को रन करने के लिए। मुझे लाइसेंस नहीं मिलने वाला इतनी जल्दी, आई विल नीड दैट लाइसेंस एज वेल। तो बहुत सारी मेहनत लगेगी और फिर मैं उस कॉमर्शियल फ्लाइट को या प्रोफेशनली फ्लाइट को चला सकती हूँ। सो मेक योर ड्रीम रियलिस्टिक। अनदर थिंग इज दैट, सेकेंड पॉइंट, आपके ड्रीम के स्पेसिफिक होने का सेकेंड पॉइंट है कि आपका ड्रीम पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने ड्रीम के लिए ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मैं ऐसा करूं, मैं बस, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे दुखी करे। That is a negative dream and negative goal of life. It will not happen. आपके लिस्ट में जो मैंने 5 ड्रीम्स बोले थे, अगर आपने उनको इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखा है, प्लीज आप उसको करेक्ट करें, रिफ्रेज करें
और पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। हाउ पॉजिटिव यू कैन रिफ्रेम योर ड्रीम्स। आप अगर कहेंगे कि मुझे कार चाहिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू से यू नीड अ कार, यू विल नॉट से आई डोंट नीड अ बाइक। तो कोई आपसे बाइक ले लेगा? वो ये थोड़ी ना जानता है कि आपको कार चाहिए, वो कहेगा मुझे बाइक में नहीं चलना, तो कहेगा ठीक है भाई तुम पैदल चलो। सो द थिंग इज दैट कि आपको वो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रेम करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं। So make it very well defined and in detail. So detailed thing what I am sharing about you is कि आप वो ड्रीम, और भी डिटेल्स में हम जाएंगे, बट वो ड्रीम exactly क्या हो। For example, I'm giving you an example of CEO. Some people want to be the CEO of a company. Now, if you just search what all words are used for this abbreviation CEO, CEO is Chief Executive Officer, can also be Chief Exchange Officer or Commercial Exchange Officer or maybe something else. So अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको वेल डिफाइन करें। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, आप उसे प्रॉपर तरीके से, कोई भी चीज आप जब लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपर डेफिनेशन दें, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। द नेक्स्ट इज मेजरेबल। जब आप अपने गोल्स को डिफाइन करें तो उनमें कुछ एविडेंसेस होने चाहिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आप सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर और यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल टू इंदौर। आप कोई भी ट्रैवल जब अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कितने किलोमीटर है ये। सेकेंड थिंग यू डिसाइड कि अरे इसके लिए इतने किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मेरी गाड़ी में कितने पेट्रोल होना चाहिए। अगर सफिशिएंट नहीं है तो मुझे रास्ते में एक स्टॉपेज लेना पड़ेगा पेट्रोल रिफिल कराने के लिए। तो ये मेजरेबल होना चाहिए कि आप जो जर्नी है वो कितनी, आपकी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करने वाले हो। नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें माइलस्टोन्स होने चाहिए। आपको कैसे पता आप सही रास्ते पे जा रहे हैं? वहां पे बोर्ड्स होते हैं आपको जो डिफाइन करते हैं कि ये रास्ता इंदौर का है या ये रास्ता दूसरे शहर का है, कोई भी दूसरा शहर, और बीच बीच में से रोड्स डिवाइड होती जाती हैं। आप अपने शहर तक पहुंचने के लिए आपको माइलस्टोन्स जहां पे लिखा हो कि अब ये आपका डेस्टिनेशन सिर्फ 20 किलोमीटर्स बचा है, एंड देन यू विल बी लाइक अरे यार 20 किलोमीटर ही बचा है, चलो थोड़ा और चल लेते हैं। तो योर माइलस्टोन्स मस्ट बी डिफाइंड and your goal must be measurable. For example, what is non-measurable goal? I want to be happy. अब happiness का कोई measurement नहीं है। अगर कोई कहे अच्छा भाई आप कैसे happy होंगे, तो happiness की कोई definition नहीं है। So a person telling me that the goal is to be happy, that means कि वहां पे happiness को थोड़ा सा specific कीजिए, थोड़ा सा measurable बनाइए, and how you'll achieve it, you define that. Third is your goal need to be attainable. Attainable means कि आप कोई भी गोल जो बनाते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो आपको पता है कि बहुत मेहनत कर लूंगा और हासिल भी कर सकता हूँ। For example, as I shared my example of being driving a plane, a commercial plane. If a person doesn't have limbs, अगर किसी के बॉडी में बॉडी पार्ट्स नहीं है, हाथ नहीं है या पैर नहीं है सपोज, और उसको उसका ड्रीम है कि वो कमर्शियल पायलट बने, तो इज दैट पॉसिबल? बहुत सारे लोगों की जिंदगी का सवाल होता है जब जो कमर्शियल पायलट होता है, तो ऑब्वियसली उसको एक लाइसेंस मिलेगा ही नहीं और वो अटेनेबल नहीं हो पाएगा। इवन इफ वो पर्सन को आर्टिफिशियल लिम्स यूज कर सकते हैं, बट स्टिल दैट इज नॉट अटेनेबल। सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि क्या जो गोल आप डिसाइड कर रहे हैं वो अटेनेबल है या नहीं। वी विल ऑल्सो डिस्कस द सेम थिंग्स इन आवर हर्डल्स। हर्डल्स पे भी हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो हाउ डिफिकल्ट येट अचीवेबल योर गोल इज। उसको इतना डिफिकल्ट होना चाहिए कि जब वो अचीव करें तो हमें खुशी हो। और उसे हम अचीव कैसे करेंगे? डिफिकल्ट है बहुत। अब उसे अचीव कैसे करेंगे? तो उसे हम सब गोल्स में, छोटा छोटा सब गोल्स में डिवाइड कर देंगे, एंड देन इट विल बी इजियर
वो पूरा रास्ता ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाएगा। एक और चीज, आपका जो भी गोल है भले वो कितना भी बड़ा हो, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ यू। आपके कंट्रोल में ही अगर वो नहीं है उस ड्रीम को अचीव करना, उसका पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो वो ड्रीम आप कितनी इजीली अटेन कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। सो कीप द कंट्रोल ऑफ दैट ड्रीम इन योर हैंड। नेक्स्ट इज रेलेवेंट। आपका जो भी गोल है, फर्स्ट थिंग, इतना, मैंने अचीवेबल में कहा था आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसे अचीव कर सको, पर इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि जो आपको पता है कि इट इज गोइंग बियॉन्ड, इट इज टू डिफिकल्ट टू अटेन। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, आई नो, बट देयर आर सर्टेन हर्डल्स जो कि रियलिस्टिक होते हैं, उसको ध्यान में रख के ये चीज बोली है। और रेलेवेंट में your goal should be easy but not so easy कि जब आप उसको अचीव करें तो आपको ये लगे कि अरे यार ये तो मेरे रोज का काम है, मैं तो ये रोज कर लेता हूँ। सो लेट इट बी रेलेवेंट टू यू। आपको लगे कि कुछ अचीव तो किया है। अगर वो बहुत इजी हो गया तो इट विल बी टू बोरिंग फॉर यू। ऑल्सो दिस गोल ऑफ योर्स need to connect with your identity and your values। अगर आपको लगता है ये काम आपको खुशी दे रहा है और ये आपकी वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है, तो आप इजीली उसके लिए आगे स्टेप्स लेंगे। अगर आपके वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा है, सपोज you are in a system where everyone is following corruption and it doesn't go with your values, आपको करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ दिनों में आप या तो उस सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे भी तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप उस जॉब को क्विट कर देंगे। अदरवाइज आप वहां रहेंगे बट यू विल बी अनहैप्पी। लास्ट वन इज योर टाइम। योर टाइम नीड टू बी वेल डिफाइंड एंड we'll talk about this in our next slides। दो और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, and that is your resources and your action। this is a must। आपके सारे resources बहुत जरूरी हैं। आप resources में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आपका अपना mindset, आपके फैमिली का सपोर्ट, आपके मनी, फाइनेंसेस, अगर आप जर्नी में है तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जो उस जर्नी में आपको लगेंगी। सपोज यू नीड टू स्टडी, आपको स्टडी करना है तो आपको कौन सी बुक्स लगेंगी, आपको प्लानिंग लगेगी। अगर आपको लगता है कि इसके लिए कुछ कोर्सेज बहुत जरूरी हैं तो वो कोर्सेज लगेंगे। एंड योर एक्शन, ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आई होप you all are going good with this session। Tell me if you all are happy and getting the points easily, or should I slow down the speed, or I am okay with that? Okay, should I continue now? Great, great। So next is what steps you will take to how you are going to design your goals। Now this is a process that you need to understand। हम इन गोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे? तो कुछ स्टेप्स हैं जो हम लेंगे और ये स्टेप्स जो हैं वो हैं हमारे सब गोल्स और टास्क। तो हमारे इस पिरामिड में आप देख रहे होंगे कि टॉप पे गोल्स हैं, हमारा वो अल्टीमेट गोल है जो हमें चाहिए, पर हमें उस तक पहुंचने के लिए कुछ डिविजन्स करने पड़ेंगे। तो यू डिवाइड इट, इस गोल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे उस पर भी डिस्कशन हम करते हैं, और उन छोटे छोटे सब गोल्स को हम एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज करते हैं। तो हमारा जो रूट है, जो हमारे जैसे बॉडी का जो सेल होता है, वो डेली के टास्क और एक्टिविटीज होते हैं जो हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनको करके हम हमारे सब गोल्स अचीव करते हैं। और धीरे धीरे जब सब गोल्स को अचीव कर लेते हैं हम सारे एक एक स्टेप करके, तो हमारे गोल्स को हम फाइनली अचीव कर लेते हैं। तो
ये टास्क और एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर ये चीज भी आप याद रखें कि आप इन्हीं टास्क और एक्टिविटीज को अपने सारी चीजों का कोर मत बनाइए। आप अपने टास्क और एक्टिविटीज को बेस कीजिए अपने आउटकम पे। आपका आउटकम आपका कोर होना चाहिए, सब कुछ उसके हिसाब से होना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप अपने सारे एक्टिविटीज और टास्क डिफाइन करेंगे। तो जब आप सोचें कि आज आपको क्या क्या करना है, तो अगर आपका हेल्थ आपका गोल है सपोज, तो आपके सारे टास्क और एक्टिविटीज उस हेल्थ से रिलेटेड जो भी गोल आपने डिफाइन किया है, सपोज आपने सोचा है आई नीड टू रिड्यूस 5 kgs, तो उस 5 kgs के डेफिनेशन के लिए इसके इस टारगेट के लिए आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 kg एट अ टाइम। 1 किलो, फिर 1 किलो, फिर 1 किलो, धीरे धीरे आप रिड्यूस करेंगे। और उस 1 kg को रिड्यूस करने के लिए, उस वेट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करेंगे? आपकी एक्सरसाइजेस प्रॉपर होनी चाहिए, आपके डाइट्स प्रॉपर होने चाहिए। इन अ सिमिलर वे जब आप प्रोफेशन की बात करेंगे कि आई वांट टू be the CEO of a company, or I want to be hired by this so and so company, तो आपको वहां तक वो कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए हायर कर ले, इसके लिए आपको किस किस सब गोल पे डिवाइड करना पड़ेगा अपने गोल को, कि आपके एजुकेशन प्रॉपर हो जो रिक्वायर्ड है, आपके रिज्यूमेस प्रॉपरली बने हो, आपके इंटरव्यू के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपकी ग्रूमिंग वेल हो, और उसके लिए आपको डेली में सारे टास्क और एक्टिविटीज उसी के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। गॉट इट? ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर हमारे इफ यू ऑल कैन सी दो स्टेयर्स, जो छोटे छोटे स्टेयर्स हैं नीचे, अगर हमारे टास्क एमलेस है, हमारा आउटकम जो है या गोल जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो हम इन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं, और फिर वापस आ जाएंगे और फिर दूसरी एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ द एमलेस टास्क वी हैव। पर अगर हमारा गोल डिफाइंड है, तो हम अपनी सीढ़ी उस गोल के डेफिनेशन के बाद क्रिएट करेंगे कि हमारा गोल थोड़ा सा ऊंचा है, चलो अब थोड़ी सी लंबी सीढ़ी बढ़ाएं। और ये 4-5 छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ने के बजाय क्यों ना हम एक ऊंची सीढ़ी बनाएं और उसी में पूरी तरीके से लग जाएं। सो योर पर्पसफुल टास्क एंड एक्शन लीड्स यू टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करें, पर सिर्फ डेस्टिनेशन पे फोकस मत करिए। Am I audible? Hello? Yes, you are audible. Okay. Okay. So सिर्फ डेस्टिनेशन पे फोकस मत करिए, आपकी ये जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सब गोल्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं। आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने इस जर्नी को एंजॉय करते हुए ट्रैवल नहीं किया, तो आप इस जर्नी में खुश नहीं होंगे, सिर्फ एक बार खुश होंगे, और वो होगा तब जब आप उस गोल तक पहुंचेंगे। तो क्या इस पूरे ड्यूरेशन में आप अनहैप्पी रहना चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि आप जो भी करें आप वो खुशी खुशी करें। दैट इज पॉसिबल जब आप इस पूरी जर्नी को एंजॉय करें। So focus on the journey. I'm not saying not on the goal. I'm saying focus on goal, but also on your journey, not just on your goal. Now I'm going to give you an answer about this question, when. This is all about time. So let me tell you, to start your journey, write down wherever you are writing today's date. आज का दिन लिख लीजिए, 19th of September 2020। जो ड्रीम आपने अभी देखा है, इस वक्त लिखा है, उसका पहला दिन आज और अभी है। इनफैक्ट टाइम भी लिख लीजिए कि क्या टाइम है। डन? गिव मी एन आंसर इफ यू आर डन। Done? Write done in chat box if you are done. Have you written the date of starting your journey?
Great, great, great. Great, Jigna, Tasneem, Anuja, Kuljit. Great. तो हम आज से शुरू करते हैं, इस जर्नी को अभी से ही शुरू कर देते हैं. And Neetu, great. What is going to be your final deadline for this? दो चीजें होती हैं when. When is when you start it, and the other thing is when you want to reach that goal. Now make it very realistic. मैं अगर सोचूं कि 3 दिन में मैं द सेम एग्जाम्पल कि मैं 2 या 3 दिन में पायलट बन जाऊं, इज इट रियलिस्टिक? इट्स नॉट रियलिस्टिक एट ऑल. वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है. इसीलिए मुझे रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा कि इस वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा. तो अब आपको ये टाइम डिसाइड करना है 3 तरीके से. या तो आपका वो जो डेस्टिनेशन है जहां आप पहुंचना चाहते हो वो इतनी जल्दी आपको अगर नहीं मिल सकता तो आपको ईयर्स में गोल्स बनाने पड़ेंगे. दैट इज गोइंग टू बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स. आपको उस ईयर को, सपोज आप सोचते हैं अगले साल 2021 में इसी टाइम इसी वक्त मैं बेस्ट स्टूडेंट होऊंगा या बेस्ट whatever your field is. I want to be the best trainer in this world, or I want to be the best doctor of this city. So whatever your goal is, write down that date when you want to be achieve that goal. It can be 1 year, 2 year if it is a long term goal. First, write down your long term goal. Are you all done with that? Give me a thumbs up in the chat box, please. Have you written your final deadline? Yes, or thumbs up, thumbs up. Kuljit, great. Neetu Sharma, Anuja, great. Great, great, great going. So now you know कि आपको कितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए. अब आप उसको डिवाइड करेंगे अपने मंथ्स में. दिस इज गोइंग टू बी नाउ योर सब गोल. आपने जितने भी साल सोचा है, अगर आपने 5 साल सोचा है तो 5 साल को आप 5 अलग अलग सालों में डिवाइड करेंगे. फिर उन 5 सालों को डिवाइड करेंगे मंथ्स में, देन वीक्स में, and then will come your daily goals and task and activities. Your daily goal and task and activities are the most important things. आप रोज क्या कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा आपका फाइनल गोल इन योर लाइफ. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी और आपसे आंसर्स भी चाहूंगी इस चीज के लिए कि आप सभी लोगों ने गूगल मैप यूज किया है. गूगल मैप किसी भी वजह से, मे बी कैब के लिए, लेने के लिए, या फिर आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, नई सिटी में हैं, है ना? सभी ने, आई थिंक सबने यूज किया होगा गूगल मैप. आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जो गूगल मैप जिसने यूज नहीं किया हो. तो हाँ, बहुत सारे लोग टेक्निकली दे आर नॉट ओके कंफर्टेबल, सो दे माइट नॉट हैव यूज्ड इट. बट आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन जो इस सेशन में है वो सभी लोग गूगल मैप कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो जरूर यूज किया है सबने. तो क्या वो गूगल मैप ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि जो गूगल मैप ने बताया आप किसी नई जगह जा रहे हैं और गूगल मैप ने आपको जो रूट बताया आप वहां पहुंचते हैं और लगता है मैं कहाँ आ गया या मैं कहाँ आ गई? इट हैपेंड विद मी. आई वाज इनवाइटेड बाय अ लेडी, बाय माय मेड. उसकी डॉटर का वेडिंग था एंड शी इनवाइटेड मी कि आप हमारे उस गांव आ जाना और वहाँ हमारी बेटी की शादी है. मैं कभी उसके घर नहीं गई थी. मैंने सोचा गांव में पूछ लूंगी घर कौन सा है, गांव तक पहुंचती हूँ. और वो गांव में पहुंचने के लिए जो गूगल मैप ने बताया, मैं अपनी एक नेबर के साथ गई थी, उसकी भी सेम मेड थी, और एंड वी वर ट्रैवलिंग. और पहुंचते पहुंचते हम तीनों ऑल थ्री ऑफ अस, मतलब उसकी छोटी डॉटर, शी एंड मी, ऑल थ्री ऑफ अस, आई वाज ड्राइविंग
एंड हम एक ऐसे मैदान में पहुंच गए जिसके आसपास ना दूर दूर तक कोई इंसान ना कोई और सामने पेड़ ही पेड़. इट वॉज अ कंप्लीट जंगल. आई रीच्ड समवेयर जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ. सो डू यू थिंक whatever map you have in your hand as in your mobiles, that's the correct one? So let me tell you, your map is not the territory. आप जो भी प्लान अभी बना रहे हैं और जो भी प्लान आप आगे बनाने वाले हैं, आपका प्लान इतना स्मूथ दिखेगा कि आप साइकिल से चल रहे हैं और यहाँ डेस्टिनेशन है और आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं, गोल है. बट इन रियलिटी क्या होने वाला है, आप यहाँ हैं, आप गड्ढे में गिरेंगे, आप फिर कहीं पहुंचेंगे, फिर आपका फर्स्ट सब गोल आपने अचीव किया होगा. देन अगेन आपको एक छोटा सा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन अगेन यू विल हैव अ अनदर सब गोल अचीव्ड. देन आपको एक शायद आपको व्हीकल चेंज करना पड़ जाए एंड देन यू विल अगेन रीच समवेयर एल्स. यू विल अगेन बी अ सक्सेस एंड स्लोली बाय प्रोसीडिंग आप धीरे धीरे चलते चलते, बारिश भी आएगी, तूफान भी आएगा, बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट वॉट एवर इज गोइंग टू कम. आप ये जो प्लान आपने बनाया होगा उससे बिल्कुल अलग होगा. But please continue doing that. Now I am going to talk about all these hurdles. How will you face these hurdles? So, first of all, you will have to understand if this hurdle is real or it is perceived. If this hurdle is real, कितना रियल है ये प्रॉब्लम, क्या ये यूनिवर्सली ट्रूथ है? सपोज मैं हनुमान जी की तरह आज विश करूं कि चलो मैं जाती हूँ और आज मैं भी सन को एक फ्रूट समझ के गल्प कर लेती हूँ. जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? सो ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज रियल. आई कांट डू दैट. So that was a story, that was a mythological story. I won't go into it was real or not, but the thing is, the fact is, I can't do that. That's a real hurdle for me. Another thing that I shared earlier, कि अगर आपके बॉडी में बॉडी के कुछ पार्ट्स ही नहीं है जिसकी वजह से आप ड्राइव कर सकें, आपके हैंड्स नहीं है या आपके लेग्स नहीं है, तो आपको कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने के लिए लाइसेंस नहीं मिल सकता. So that's a real problem. So what will you do? Just identify this real problem and you know that this is not at all achievable. Drop the plan. Drop the plan only if the problem is real and you know कि ये universal truth है, it will never happen. इसके कुछ different aspects भी हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, जैसे कि जब तक लाइट्स नहीं बल्ब नहीं आविष्कार हुआ था, जब तक बल्ब का लोग सोचते थे कि कोई अगर करना चाहता है तो वो तो रियल प्रॉब्लम है, वो हो ही नहीं सकता. बट एक साइंटिस्ट कुछ थे जो ये सोच रहे थे उस वक्त कि ये चीज की जा सकती है. प्रॉब्लम उन्हें लग रहा था शायद जो दुनिया कह रही है वो रियल है, but still they had something in their mind कि शायद ये तरीके आजमाऊंगा तो कर सकता हूँ. So that was achievable. Of course that was achievable. So that was not a real hurdle at all. Similarly, जब फोन्स बने, आविष्कार हुआ फोन्स का, धीरे धीरे आज हम टेक्नोलॉजी में उस फोन के आविष्कार से मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे, इन सब पे आ गए. जब वो नहीं था तो उसको सोचना भी अनइमेजिनेबल था, पर आज वो सब कुछ पॉसिबल है. तो जब वो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि फोन्स बनाना है, ऐसी कोई चीज बनाना है जिससे दूर से लोग बात कर सकें, फॉर देम it was not a hurdle, it was not a real hurdle, it was possible for them, it was achievable for them. So in that case आप किसी और की मत सुनिए. पर अगर आपको पता है कि आप ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं which is not possible at all, it is a real problem, drop the idea. Next is, your goal need to be achievable to you. Achievable means कि प्रॉब्लम तो रियल है, ऑफ कोर्स इट इज रियल, पर अगर मैंने इसमें टाइम और एफर्ट डाला, these two things, टाइम एंड एफर्ट डाला, तो मैं इस
गोल को इजीली अचीव कर लूंगी, ये इतनी बड़ी चीज भी नहीं है. सो इफ इट इज वर्थ स्पेंडिंग योर टाइम एंड एफर्ट, देन अचीव इट. इफ यू थिंक यार अचीवेबल है बट इतना टाइम और एफर्ट कौन डाले इस चीज में, इन दैट केस ड्रॉप द आइडिया. आप टाइम और एफर्ट उस पर डालने ही नहीं चाहते. अगर आप टाइम और एफर्ट डालना चाहते हैं, यू थिंक इट इज वर्थ स्पेंडिंग, गो फॉर इट. नेक्स्ट इज योर बिलीफ एंड समवन एल्सेस बिलीफ. अब आप सोचिए कि क्या इस हर्डल के बारे में आपका बिलीफ क्या है. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ बिलीफ, बहुत पहले एक बिलीफ हुआ करता था कि women can't drive or women can't drive an aircraft. In that case, अगर women नहीं ड्राइव कर सकते एयरक्राफ्ट को, तो हमारा वो बिलीफ फॉल्स बिलीफ था, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था. एंड सो टेस्ट द बिलीफ एंड देन एग्जीक्यूट इट. कुछ और ऑब्स्टिकल्स हैं जो इसमें आते हैं, वो हमारे खुद के बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स हैं. यू डोंट प्लान एट ऑल. द अदर थिंग इज आप अपने गोल की तरफ जाने की बजाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में हैं. आप इस वक्त कुछ और करने लगते हैं और मेन गोल की तरफ कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहे हैं. थर्ड इज योर इनकंसिस्टेंसी. आप किसी दिन वर्क कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं. किसी दिन सोच रहे हैं चलो 4 दिन बाद कर लेंगे यार, कौन सा, वो तो लॉन्ग टर्म गोल है, बाद में देखा जाएगा, ये बहुत वक्त है. इनकंसिस्टेंसी विल लीड यू नोवेयर. नेक्स्ट इज चेंज योर गोल्स. दैट मीन्स आप बार बार अपने गोल्स ही बदल देते हैं. आज आपने एक बनाया, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, और इसलिए आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बनते हैं. आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है बट यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट. नेक्स्ट इज योर फोकस इज ऑन लो प्रायोरिटी टास्क. आप ऐसी बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं जो आपकी लाइफ का प्रायोरिटी नहीं है. लास्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट इशू एंड योर लैक ऑफ मोटिवेशन. जब आपका पर्पस डिफाइन नहीं होगा तो आपका मोटिवेशन ही नहीं होगा. तो अगर आप गोल को चेंज कर देंगे तो यू हैव टू बी वेरी रिजिड. डोंट चेंज योर गोल्स. आपके जो गोल्स हैं उसको चेंज मत कीजिए. अगर आप आपने अपने गोल्स चेंज कर दिए तो आप अपने टारगेट पे कभी भी रीच नहीं करेंगे. आप फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स के लिए, और साथ में आपको फ्लेक्सिबल भी होना है. फर्स्ट पॉइंट में आई वाज टेलिंग यू कि आपको रिजिड होना जरूरी है अपने गोल के लिए, पर फ्लेक्सिबल कैसे हो. अगर गोल खुद ही अपना रास्ता चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टाइम जब IAS के एग्जामिनेशन के पूरे सिलेबस ही चेंज हो गया, तो स्टूडेंट्स को क्या था, उनको अपने तरीके को बदलना पड़ा, और उन्होंने तब फ्लेक्सिबल होके, गोल वही है, गोल चेंज नहीं हुआ है, बट गोल में जो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए वो चेंज करनी पड़ेगी. तो बी फ्लेक्सिबल इन दैट केस. नेक्स्ट इज, if you think that you are not able to achieve your goal even after planning everything, and you know that it is achievable, and if you desperately want it, then it is time to change your habits, your behaviors and your ways to achieve them, but not your goals. कभी कभी क्या होता है कि कई बार लोग चेंजेस ये करना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में, अपने हैबिट्स में, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं. आज मेरी फैमिली में, सपोज इफ अ चाइल्ड सेज कि मेरी फैमिली में सब कुछ है, मैं कोई अपना टारगेट क्यों बनाऊं लाइफ का, क्योंकि वो आज की लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है, वो एक कंफर्ट जोन में जी रहा है. अगर आज की स्टेज उसको अपने डिजायर्ड गोल से बेटर लग रही है तो वो सोचेगा मैं आज भी ही मस्त हूँ, लेट मी बी वेयर आई एम. अगर आप, क्योंकि आप जैसे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोचते हैं, आप एक फेयर जोन में जाते हैं, आपको डर लगता है, दुनियादारी से डर लगता है, दुनिया में एक्शंस लेने से डर लगता है, आपको लगता है यही तो ठीक हूँ, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, खाना है, आराम है, एवरीथिंग इज देयर, तो यहीं रहते हैं. बट बिलीव मी, ये कंफर्ट जोन एक बबल की तरह है, और कुछ टाइम के बाद ये बबल जो होता है वो अपने आप बर्स्ट हो जाता है, बिकॉज आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तब ये कंफर्ट जोन नहीं रहता. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप स्लोली प्रोसीड करें और अपने ग्रोथ जोन पे पहुंचे. कंफर्ट जोन के बाद आएगा फेयर जोन, फिर आएगा आपका लर्निंग जोन, एंड देन आपका एक ग्रोथ जोन आएगा, और इस ग्रोथ जोन में आप अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स फुलफिल करेंगे. There are some energy
बूस्टर्स इन योर लाइफ, कुछ इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज होते हैं और कुछ रोल मॉडल्स होते हैं। जस्ट आप उन्हें आइडेंटिफाई करें कि कौन है वो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज, कौन है वो रोल मॉडल्स, जिस रास्ते पे वो चले हैं आप चलना चाहते हैं उस सक्सेस की तरफ। आपके वो मेंटोर्स कौन है जो आपको उस रास्ते पे चलने के लिए रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते को आपको ईज पे लेकर आएंगे। और वो फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप कौन सा है जो आपके उस रास्ते पे आपको धक्का भी देगा, पुश भी करेगा, और अगर वो आगे चल दिए हैं तो वो आपको खींच के आगे लेके भी जाएंगे। फिगर आउट दीज पीपल। There are also some people who are energy drainers. आप इन energy drainers से बच के रहिए, ये आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट करने वाले हैं। तो if one remember, अगर कोई आपका इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी कोई है या रोल मॉडल है, वो पर्सन है जो जिसने उसको अचीव किया है उस गोल को, तो आप भी कर सकते हैं। बिकॉज इफ वन पर्सन कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो लर्न टू डू इट। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पे खड़े हुए हैं जो एक राइट की तरफ एक रास्ता जाता है और एक लेफ्ट की तरफ। अगर आप नॉर्मल जहां हैं या तो वहीं पर हैं तो कंफर्ट जोन में है, बट ऑफ कोर्स पीछे से लोग आएंगे, धक्के देंगे, आप किसी ना किसी रास्ते पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इट इज ऑलवेज बेटर आप डिसाइड करें। अब इन दो रास्तों में लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है वो आपको ऐसे ही आप जैसे चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, वैसा वाला रास्ता है, और राइट वाला रास्ता आपके गोल की तरफ जा रहा है। आई होप यू ऑल कैन इमेजिन दिस। नाउ इमेजिन and visualize that you have a goal on the right side path. अब सोचिए कि इस गोल तक अगर आप पहुंच गए तो you just write down, I'll give you 30 seconds to write it down, कि अगर आप इस गोल तक पहुंच गए तो वो कौन कौन से फायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही write down 2 points, वो कौन से फायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। मैं वेट कर रही हूं, आप लिख रहे हैं, और साथ ही आप लिखेंगे कि वो कौन से पेन्स हैं जो अगर आपने ये गोल्स अचीव नहीं किए, वो कौन से लॉसेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ेंगे अगर आपने ये गोल अचीव नहीं किया और आप दूसरा पाथ ले लेते हैं, तो वो कौन से लॉसेस हैं जिनसे आपको जो फेस करने पड़ेंगे। प्लीज राइट इट डाउन एंड गिव मी अ थम्स अप वंस यू आर डन। Give me a thumbs up in the chat box if you are done. Done? Anybody still writing? I'm waiting for just 3 thumbs ups. आपको लिखना है वो फायदे जो आप गोल अचीव करने के बाद आपको मिलेगा, और आपको लिखने हैं वो नुकसान जो अगर वो अचीव नहीं किया तो आपको फेस करने पड़ेंगे। डन। So I have received many from Neetu, from Arunima, Ratna, Praful, Mala, Kuljit. Very good. So remember one thing, अगर आपका डिजायर्ड स्टेट, आप अगर जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो आपको ज्यादा फायदा वहां दिखेगा आपकी इस स्टेज से जहां आप हैं, तभी आप उसकी तरफ पूरे मोटिवेशन के साथ चलना शुरू करेंगे। So let's work on time management now, because this is the main thing जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने इस गोल तक पहुंचने के लिए अपने टाइम को कैसे मैनेज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली मैं इस चीज को बताना चाहती हूँ, बट ये इक्वली सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि जो बिगेस्ट इश्यूज स्टूडेंट्स को होते हैं वो 3 एरियाज में होते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग, या तो आपने प्लान किया ही नहीं है, हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, आई विल नॉट गो टू डीप इनटू दिस। ईदर यू हैव नॉट प्लान्ड इट और योर प्लान इज नॉट रियलिस्टिक। सेकेंड वन इज प्रोक्रेस्टिनेशन, और आप अपनी सभी चीजों को जो करना चाहिए आपको, आप उन्हें इतना टालते हैं, अवॉइड करते हैं चीजों करने के लिए कि आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते किसी चीज को। एंड थर्ड थिंग इज परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि परफेक्शनिज्म एक इश्यू कैसे हो सकता है। आई हैव फेस्ड इट, आई नो इट। सो इफ यू हैव दिस इश्यू ऑफ परफेक्शनिज्म,
आप इतना परफेक्टली कोई चीज करना चाहते हैं कि आपको लगता है जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाए तब तक मैं इसको शुरू नहीं करूंगी और या फिर नहीं करूंगा. So it happened with me as well. I had to start many things online, but I was thinking, मुझे extra light चाहिए, शायद मुझे better speaker चाहिए, शायद मुझे ये चाहिए, शायद मुझे वो चाहिए, environment अच्छा होना चाहिए, पंखा बंद होना चाहिए, बाहर से आवाजें नहीं आनी चाहिए, weather अच्छा होना. Hello? Okay. So this can be an issue to start something. Let's discuss then. First is your planning. These are some basic guidelines that I'm giving you. Plan your next day a night before. आप अगले दिन क्या करने वाले हैं इसकी प्लानिंग आप अगले दिन नहीं आप एक दिन पहले करना शुरू कीजिए. सेकेंड इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. आपने कोई चीज कहाँ रखी है और कहाँ उसे वो मिलनी चाहिए अगली बार जब आपको चाहिए हो तो आप वहीं रखना शुरू करें. अपने आप को ऑर्गेनाइज सिर्फ इस तरीके से नहीं और भी बहुत सारे तरीकों से आपके बहुत सारे टाइम इससे सेव होना शुरू हो जाएगा. कैन यू इमेजिन कि अगर आप किचन में गए और आप जहाँ पे नाइफ रखते हैं वहाँ नाइफ नहीं है या आप जहाँ लाइटर एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ होना चाहिए और किसी और ने आपको चाय बना के दी और लाइटर वहाँ नहीं है, व्हाट विल हैपन? आपको पूरा टाइम 5 मिनट लगेगा लाइटर कहाँ गया. इट हैपन और यूजुअली हैपन्स विद आवर फैमिली की टीवी का रिमोट गायब है क्योंकि टीवी का रिमोट जिसने यूज किया वो कहीं और प्लेस हो गया. सो if you are not organized you are wasting a few of your minutes and each and every minute is valuable. Next is आपका allocation. आप अपने हर एक एक्टिविटी आप कब कौन सी चीज करना चाहते हैं, आप रीडिंग कब करना चाहते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स कब करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ खेलना कब चाहते हैं, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशंस, ये सारी चीजों के जो भी एक्टिविटीज आपके दिन भर की हैं आपके डेली कोर्स जो हैं वो सब कुछ के लिए अगर आप टाइम एलोकेट करना शुरू कर दें तो आपके बहुत सारा टाइम आप सेव करने लगेंगे. देन प्रायोरिटाइज योर वर्क. प्रायोरिटाइज पे हम और वर्किंग करने वाले हैं थोड़ा सा कि हाउ विल यू प्रायोरिटाइज योर वर्क. आप हर चीज जो आप करते हैं उसमें किसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं उसे सबसे पहले करना जरूरी है. ईट योर फ्रॉग. नेक्स्ट इज स्टिक टू योर प्लानिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमने इतनी सारी प्लानिंग की, हमने इतनी सारी चीजों के बारे में सोचा, सारी चीजें तय हैं, पर क्या है कि अलार्म नहीं बजा या अलार्म बजा पर मुझे लगा 5 मिनट के झपकी लेने में क्या जाता है एंड देन आपका पूरे दिन का स्केड्यूल चेंज हो जाता है. तो वट एवर यू आर प्लानिंग, भले ही आप सिर्फ एक एक्शन की ही प्लानिंग की हो आपने नेक्स्ट डे के लिए, जिस दिन जिस वक्त के लिए प्लानिंग की है उस दिन उस वक्त वो जरूर कीजिए क्योंकि ये प्लानिंग आपने अपने आप के लिए प्रॉमिस किया है कि आप करेंगे और अगर आप अपनी प्लानिंग से स्ट्रिक्ट नहीं होते देन यू आर ब्रेकिंग अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ. नाउ हाउ विल यू प्रायोरिटाइज योर वर्क? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज नोट डाउन and be interactive on this slide because I want you to be interactive because ये चीज आपके समझ में बहुत deeply आनी चाहिए. It is really important for all of you. Whatever work you have to divide all your work into these 4 categories. The first one is your work important as well as urgent? क्या ये जितना इस वक्त इम्पोर्टेंट है उतना ही अर्जेंट भी है, अभी के अभी होना जरूरी है इसको? अगर ऐसा है ये कोई भी काम आपका तो आप अभी और इसी वक्त इसे करेंगे. द सेकेंड वन इज योर वर्क इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट अर्जेंट. गेटिंग इट? मुझे कपड़े खरीदने हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे घर में 2 महीने बाद एक वेडिंग है, मुझे उसको अटेंड करना है एंड आई वांट टू बाय क्लोथ्स. Important है but it's not urgent. If it is important and not urgent you will plan to do it. You will not do it now but you will plan to do it. Third is your urgent but not important. Delegate your खाना हम कल दे देंगे तो कल भूल गए निकालने. देखो ना सब रखा. what happens is Miss Anu Papa, please can you mute yourself? Actually, there is a power failure at my end, so okay. I have lost the control. Okay, so It's raining. Yeah. Fine, it's fine. So is your work urgent but not important? ये कंफ्यूज करेगा आपको, बट ऐसे यूजुअली ऐसे वर्क्स होते हैं जैसे बॉसेस आप
emails के respond नहीं करते, they delegate this task to their secretaries. So usually maids को भी लोग कर देते हैं. Next is it is neither important nor urgent. So these are time wasters. We usually always do things जो यहाँ पे time wasters वाले category में आते हैं. So now figure out all these things and let's proceed further. Procrastination करने से एक cycle create हो जाती है और slowly ये cycle हमको कहीं नहीं पहुंचाती. The solution for this is कि start taking your first step and move one step at a time, because consistent effort is the key to success. It will transform an average person to an excellence. Perfectionism, on the other hand, is also going to lead you to procrastination. As I shared earlier, example दिया है मैंने कि अगर perfectionism लेकर आऊंगी तो मैं सोचूंगी बाद में करती हूँ, अभी perfect नहीं हूँ, और ये एक paralysis of analysis की situation create कर देता है. और आप इस perfectionism में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप failure या fair से डरते हैं. और ये याद रखिए, failure कुछ भी नहीं होता. There are either unsuccessful attempts or successful attempts. And believe me, there are so many people in this world जो successful हुए हैं, but वो हमेशा fail भी हुए हैं. The world is full of successful failures. There are only feedbacks and experiences, and there is no such thing as failure. Talent versus attitude. I'll give you an example about this talent versus attitude. You'll have to go on YouTube to find this example of Harsha Bogle's speech about this. It is based on cricket itself. Sachin Tendulkar और विनोद काम्बली पे share किया है उन्होंने कुछ कि how talent differs from attitude. Talent बहुत कुछ होता है, but it is important that you must have an attitude कि जब आप गिरें तो वापस आप उठ सकें. So remember, there is a poem, mirror, mirror on the wall. I'll always get up after I fall, and whether I run, walk, or have to crawl, I'll set my goals and achieve them all. So now we are at the end of our session, and I'm revising it for you. You have to plan your goals, test it. Apurva, can you just mute yourself, please? Identify the resources required. Remove your hurdles. I've shared how you can do that. Choose your steps wisely, small goals. Focus on your task towards your primary goal and checking with your milestones. Time to take action starts now. So remember all these things, and you can connect with me now. We have finished our session. If you want to follow me, you can follow me on Instagram at the rate DEEPPMALASINGH, and you can also check my FB page www.facebook.com/DEEPPMALA/, and I think we have crossed the limit of our time, but still, can we take questions? Can we take questions, Tasneem? Yes. Do we have time to take If you questions? have any questions, you can even unmute yourself, or either you can put it in the chat box. Now, please put your questions in the chat box. If you have any question, please put your questions in the chat box. Another option is you can connect me on my Instagram account or Facebook page. You can send me a message on that. Ask your question, I'll respond to that. Thank you so much, Rashmi, Rajendra, Anuja, Kuljit, Sangeeta, Anupama. Thank you so much. Thank you, Sahil. Thank you so much, everyone. Neetu. Thank you. Thank you so much. Deepmala. Thank you so much, everyone. Who It was really a wonderful session. Thank you so much, Tasneem, for inviting me, and thank you so much, Sage University, for giving me this platform, wonderful platform to be here. Thank you. Yeah. I'm still receiving so many messages.
Sahil, it was only for 45 minutes, but we extended it too much. Thank you so much. Apurva, Renu, Savitri, Praful, Nitin. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Yeah, so एक शेर याद आ गया, कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो इस मुलाकात के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपके इस सेशन के बाद of course we all are so encouraged and are really aware about our goals and how to achieve it, how to have a proper time management. It was a wonderful session and thank you for your valuable time. And from Sage University, I would like to share a certificate of appreciation. I'll just share. Is it visible? Yeah, it's visible. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks to all the participants. I'll mail you the certificate. Thank you. Thank you all. Thank you all. Have a great day. Take care. Take care. Bye. Thank you.